Hello everyone. Today we will study about the nervous system. The nervous system is divided into the two, that is the central nervous system and peripheral nervous system. The peripheral nervous system is divided into the two, that is the somatic nervous system and the autonomic, that is involuntary. Somatic nervous system is voluntary and the autonomic nervous system is further divided into the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. So first of all we will study about the difference between the somatic nervous system and autonomic nervous system. सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है सिर्फ स्केलेटल मसल को सप्लाई करता है एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सारे ऑर्गन्स को सप्लाई किए जाते हैं एक्सेप्शन ओनली द स्केलेटल मसल एंड नर्व फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं सोमैटिक में वो माइलिनेटेड होते हैं. ऑटोनॉमिक के केस में सिर्फ जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं. हाँ, जो प्लेक्स फॉर्मेशन होता है पेरिफेरल वो सोमैटिक में नहीं प्रेजेंट होता. And whereas the plex formation take place in the autonomic nervous system. Distal most synapse is present within the CNS, whereas it is present outside the CNS in autonomic nervous system. The primary efferent transmitter जो होता है सोमैटिक में वो एसिटाइल कोलिन होता है. ऑटोनॉमिक में एसिटाइल कोलिन और नॉरएड्रेनालिन होता है. इफेक्ट ऑफ नर्व सेक्शन ऑन दी ऑर्गन सप्लाइड इज पैरालिसिस एंड एट्रोपी होता है सोमैटिक के केस में. एंड ऑटोनॉमिक के केस में एक्टिविटी जो है मेंटेन्ड होती है और एट्रोपी नहीं होती, नो एट्रोपी. नेक्स्ट इज द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक डिफरेंस. तो सिंपैथेटिक इज ऑल्सो सेड टू बी एज द एड्रिनर्जिक एंड पैरासिम्पैथेटिक अनदर नेम इज कोलिनर्जिक. सो ये और ओरिजिन इनका जो है डोर्सल नंबर T1 से लेके L2 या फिर L3. पैरासिम्पैथेटिक का क्रेनियोसेक्रल होता है, तो इसमें क्रेनियल की 4 नर्व्स इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ 3, 7, 9, 10 और सेक्रल S2 से लेके S4 तक होता है. यह डिस्ट्रीब्यूशन तो जो होता है सिंपैथेटिक में वो वाइड होता है. पैरासिम्पैथेटिक में इट इज़ लिमिटेड टू दी हेड, नेक एंड ट्रंक. In the case of the sympathetic, the ganglia are away from organ supplied, whereas in the case of the parasympathetic, it is on or close organ. Then the postganglionic fiber is longer in the case of the parasympathetic. Preganglionic fiber is to postganglionic fiber ratio. In the case of the sympathetic, it is 1:2 to 1:100, whereas in the case of the parasympathetic it is 1:1 to 1:2, except the enteric plex. Neuroeffector transmitter in the sympathetic majorly it is noradrenaline. In the case of the parasympathetic majorly it is the acetylcholine and minor it is VIP, that is the vasoactive intestinal peptide and nitric oxide. In the sympathetic the minor neurotransmitter is ATP, NPY, that is a neuropeptide Y, and acetylcholine. Next is the stability of the transmitter, that is the noradrenaline is stable, diffuses for wider actions in the case of the sympathetic, whereas in the case of the parasympathetic nervous system the acetylcholine is rapidly destroyed locally. The functions of the sympathetic is tackling stress and emergency, and in the case of the parasympathetic it is rest and digest, or we can say assimilation of food and conservation of energy. So next we will study about the classification of the cholinergic drugs and anticholinesterase. First we will begin with the cholinergic drugs, that is the cholinergic drug is also said to be as the cholinomimetic or parasympathomimetic. Mimetic means which will increase the action of the cholinergic drugs. Cholinergic agonist is divided into the two, that is the cholineesters and the alkaloids. In the cholineesters, the drug which are involved is the acetylcholine, methacholine, carbachol and bethanechol. So acetylcholine is not only acting on the one receptor, it is acting मतलब इसकी सिलेक्टिविटी नहीं होती, वो सारे रिसेप्टर पे काम करती है मस्कैरिनिन के. सो इसलिए हम लोग और जो एसिटाइलकोलिन होता है
उसमें एक तो इथाइलिन ब्रिज प्रेजेंट होता है और क्वाटरनरी अमोनियम स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एसिटाइल कोलिन के केस में. नेक्स्ट इज द अल्कोलाइड्स दैट इज द पिलोकार्पिन एंड और जो एसिटाइल कोलिन होता है उसमें एसिटेट इथाइलिन ब्रिज एंड क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप प्रेजेंट होता है. एंड जो एसिटाइल कोलिन में जो मतलब एसिटाइल कोलिन कहाँ पे स्टोरेज होता है उसका, एसिटाइल कोलिन इज स्टोर इन दी साइनेप्टिक वेसिकल रिमेंबर. और इसकी हेल्प कौन करता है, वैट करता है, दैट इज ए वेसिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर जो है उनकी हेल्प करता है. नेक्स्ट इज दी और याद रखना है कि साइनेप्टो ब्रीविन एंड द साइनटैक्सिन आर द टू प्रोटीन्स विच आर रिलीज which these are the two proteins which help in releasing of acetylcholine at synapse. और जो एक्सेस ऑफ द एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, दैट इज़ ए बोटुलिनियम टॉक्सिन दिया जाता है. ठीक है, ये एक बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है जो कि इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम. नेक्स्ट और एसिटाइल कोलिन इज द एसिटिक एसिड ईस्टर ऑफ कोलिन. Next is the alkaloids. It is divided into the two, that is the muscarinic and the pilocarpine एरिकोलिन. ये सारे नेचुरल मीन्स अल्कोलाइड्स होते हैं जो कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का काम करते हैं. और इसमें एक चीज़ याद रखने की है, जो पिलोकार्पिन एंड जो एट्रोपिन होते हैं वो क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म होता है. ठीक है, जो पिलोकार्पिन होता है उसके जो लीव्स होते हैं व्हेन टेस्टेड लीफ ऑफ पिलोकार्पिन इट विल गोइंग टू इंक्रीज द सलाइवा सिक्रेशन विच सो इट विल बी यूज्ड इन द ड्राई माउथ. सो इसका जो है एंटागोनिज्म इफेक्ट होता है. और पिलोकार्पिन का जो स्मॉल डोज होता है वो कॉज करता है ब्रेडिकार्डिया, हायर डोज जो है वो कॉज करता है टैकीकार्डिया. अगर पिलोकार्पिन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो वाटर में हाइड्रोलाइसिस मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर देन इट विल गोइंग टू गिव द पिलोकार्पिक एसिड विच इज़ इनएक्टिव. और पिलोकार्पिन जो होता है वो मॉइस्चर सेंसिटिव होता है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द next is the एंटीकोलिनेस्ट्रेज. दी एंटीकोलिनेस्ट्रेज में क्या होता है, दो एक तो मीन्स एंटीकोलिनेस्ट्रेज मीन्स इट इज़ इनहिबिटिंग दी कोलिनेस्ट्रेज. सो एंटीकोलिनेस्ट्रेज इज डिवाइडेड इनटू द टू, दैट इज द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल इज कार्बामेट्स एंड नॉन कार्बामेट्स. कार्बामेट्स इज द फाइसोस्टिग्मिन जिसे हम ई सेराइन भी कहते हैं, और नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन. फाइसोस्टिग्मिन जो होता है वो क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है, याद रखना. और बाकी के जो रिमेनिंग स्टिग्मिन है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल होता है. सिर्फ फाइसोस्टिग्मिन लिपिड सॉल्युबल होता है. और इसमें जो है पायरोलिडिन रिंग प्रेजेंट होती है और कार्बामेट तो इन सब में प्रेजेंट होता है सारे स्टिग्मिन्स में. तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि जो पायरोस्टिग्मिन जो है इसकी जो फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी है. और इसमें हम देखेंगे कि जब हाइड्रोलाइसिस होता है फाइसोस्टिग्मिन का तो क्या फॉर्म होता है, मिथाइल कार्बामिक एसिड एंड दी ईसेरोलिन होता है. और जो इसको फाइसोस्टिग्मिन को हम स्टोर करते हैं एक लाइट कंटेनर में, और इसमें हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे सल्फाइड या एस्कॉर्बिक एसिड डाला जाता है जिससे कि ऑक्सीडेशन जो है प्रिवेंट होता है फिनॉल्स का वगैरह का. और फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज़ दी neostigmin. The neostigmin is water soluble, so it will not able to cross the blood-brain barrier due to the presence of the quaternary ammonia. And जो फाइसोस्टिग्मिन होता है वो एंटीडोट होता है एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए. नियोस्टिग्मिन होता है वो जो होता है एंटीडोट नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोट्रांसमीटर के लिए होता है, ड्रग्स के लिए. इसका यूज़ हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए किया जाता है नियोस्टिग्मिन का. नेक्स्ट हम देखते हैं पायरिडोस्टिग्मिन. पायरिडोस्टिग्मिन में जो मेटाबोलाइट होता है दैट इज़ है 3-हाइड्रोक्सी एन मिथाइल पायरिडीनियम होता है. और ये भी जो है वाटर सॉल्युबल होता है तो क्रॉस नहीं कर पाता. और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 3 to 6 आवर्स है.
नेक्स्ट इज इड्रोफोनियम, इड्रोफोनियम नहीं है, रिवास्टिगमेन है इसमें। फिर हम देखते हैं नॉन कार्बामेंट्स में तीन होते हैं, इड्रोफोनियम, टेक्राइन, डोनेप्जिल एंड गैलेंटामाइन। ठीक है, इड्रोफोनियम जो होता है वो उस केस में हम देखेंगे कि ये जो है स्टेबल होता है 5.2 या 5.5 pH में, और ये जनरली जो है डायग्नोस की इसके लिए यूज़ किया जाता है, लाइक ये डिफ्रेंशिएट करता है माइस्टीनिया ग्रेविस एंड द कोलिनर्जिक क्राइसिस। सो रिमेंबर दैट द कोलिनर्जिक क्राइसिस इज द ओवर स्टिमुलेशन होता है निकोटिनिक रिसेप्टर का, जो कि एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। बट इन द केस ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस जो एंटीबॉडीज़ होती है बॉडी की, वो क्या करती है, ब्लॉक कर देती है निकोटिनिक रिसेप्टर को। ये उन दोनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं इरिवर्सिबल के केस में दो होते हैं, कार्बामेट्स एंड दी ऑर्गेनोफॉस्फेट। कार्बामेट्स में क्या है, कार्बेरिल एंड जिसे हम सेविन कहते हैं, प्रोपोक्सिल जिसे बाइगॉन कहा जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट में हम देखेंगे दैट इज ए डाइफ्लॉक्स, इकोथायोफेट, मैलाथोइन, डायाजाइन, TLK20, टैब्यून, सेरीन एंड सोमन, दीज आर द ड्रग्स। और इसको हम नर्व गैसेस, इंसेक्टिसाइड नर्व गैसेस फॉर दी केमिकल फीड वारफेयर, सॉरी। इसमें कौन से होते हैं, मैलाथोइन एंड डायाजिनोन यूज़ होता है, जिनको स्टार किया है उसके बारे में लिखा है। नेक्स्ट इज अबाउट दी गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट ड्रग्स होते हैं। जो स्टिमुलेंट होते हैं जनरली वो निकोटिनिक पे एक्ट करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे जो सिर्फ निकोटिनिक एगोनिस्ट पे एक्ट कर रहे हैं। हाँ, निकोटिनिक पे एक्ट करने वाले ड्रग्स जो है सिलेक्टिव निकोटिनिक एजेंट, दैट इज द निकोटाइन। निकोटाइन और निकोटोनिक उसी में लिखा है कि वो स्मॉल डोज में दिया जाता है। लोबेलिन, दैट इज दी अनदर ड्रग। नेक्स्ट इज द डाई मिथाइल फिनाइल पाइप्रेजीनियम, ये एक पूरा एक ड्रग का नाम है। दूसरा ड्रग है टेट्रामिथाइल अमोनियम, और लास्ट वन इज दी वेनिक्लाइन। नॉन सिलेक्टिव मस्करेनिक एगोनिस्ट, इसमें हम देखेंगे एसिडाइल कोलिन, कार्बाकॉल, पिलोकार्पिन, एंटीकोलिनिस्ट्रेज, MCN343A। ये सारा इसका क्लासिफिकेशन हुआ। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी दैट इज़ दी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, और इसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक। सो इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम है मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, एट्रोपिनिक ड्रग्स या फिर पैरासिम्पैथोलाइटिक। सो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। नेचुरल अल्कोलाइड्स में आता है एट्रोपिन, हायोसाइन या स्कोपोलामाइन। स्कोपोलामाइन जो है या इसको हायोसाइन का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज स्कोपोलामाइन, एंड दीज आर द नेचुरल अल्कोलाइड्स। नेक्स्ट वन इज द सेमी सिंथेटिक डायूरेटिक्स। सेमी सिंथेटिक डायूरेटिक, it will includes the atropine methonitrate, hometropine, hyoscine butyl bromide, ipratropium bromide, tiotropium bromide. Synthetic compounds, it will classified into the four, that is the माइड्रियाटिक, साइक्लोपेंटोलेट, प्रोपिकामाइड, दैन दी वैसो सिलेक्टिव जो है सिलेक्टिव वैसो सिलेक्टिव एक्शन होती है, दैट इज ए ऑक्सीब्यूटेनिन, फ्लेवोक्सेट, टोल्टेरोडाइन, डेरिफेनासिन, सोलिफेनासिन। एंटी पार्किंसन में तीन ड्रग्स होते हैं, दैट इज दी ट्राईहेक्साइल फेनिडाइल, इसमें क्या होता है, बेंजहेक्साजोल होता है, प्रोसाइक्लिडिन, बिप्रिडिन होता है। एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पाज्मोटिक, इसमें ये फर्दर कैटेगराइज किया गया है दो में, एक तो क्वाटर्नरी कंपाउंड्स हो गया और एक टर्शरी अमाइंस होता है। क्वाटर्नरी अमाइंस में हम क्वाटर्नरी कंपाउंड्स में देखेंगे हम लोग प्रोपैनथिलाइन, ऑक्सीफेनोनियम, क्लिडीनियम, ग्लाइकोपाइरोलेट, आइसोप्रोपामाइड, सिमिट्रोपियम ब्रोमाइड। और टर्शरी अमाइंस में तीन ड्रग्स होते हैं, दैट इज ए डाइसाइक्लोमाइन, वेलिथामाइड, पायरेनजिपाइन। फिर हम देखते हैं एंटी स्पाज्मोटिक में जो स्पाज्मोटिक के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज द गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट। गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट एक तो डायरेक्टली वो ब्लॉक करता है, दैट इज़ ए कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर, या फिर वो डिपोलराइजिंग एजेंट के थ्रू करता है। परसिस्टेंट डिपोलराइजिंग ब्लॉकर होते हैं। जो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर होते हैं वो तीन में कैटेगराइज किए गए हैं। एक तो क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स होता है, उसमें ड्रग्स होते हैं हेक्सामिथोनियम, पेंटोलिनियम होता है। फिर हमने देखा अमाइन, दैट इज़ ए मिकामाइल अमाइन, मिकामाइल अमाइन और पैम्पिडाइन।
जिसमें अमाइंस में लिखा है, तो ऑब्वियस इसको याद रखने का क्या है, इसमें अमाइन या फिर जो लास्ट नेम अमाइन होगा तो इजीली याद रह जाएगा. मोनोसल्फोनियम कंपाउंड, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ड्रग इज द trimethophan camphor sulfonate, persistent depolarizing blocker, that is a nicotine and anticholinesterase in the large dose. Next is about the adrenergic drugs, which is also said to be as a sympathomimetic drug. So it is divided into the three, that is the direct acting, indirect acting and the mixed action. सो द डायरेक्ट एक्टिंग जो डायरेक्टली एक्ट कर रहा है अल्फा और बीटा दोनों पे, तो हम उसको कहेंगे एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है, आइसोप्रेनालिन, फिनाइलेफ्रिन, मिथोक्सामाइन, जाइलोमेटाजोलिन, सैलबिटामॉल. ये दोनों जो है, मतलब ये सारे ड्रग्स जो है अल्फा और बीटा पे एक्ट करते हैं. और जो इनडायरेक्टली एक्ट करने वाले होते हैं, टायरामाइन हो गया, एम्फिटामाइन होता है. नेक्स्ट इज द मिक्स्ड एक्शन जो इफिड्राइन दिखाता है, एंड मीफेंटरमाइन. नेक्स्ट इज दी वी विल स्टडी सिंपैथेटिक ड्रग्स. ये इसमें पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे. लाइक तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो ये CNS से स्टार्ट करेंगे. CNS स्टिमुलेंट होता है, तो इसमें ड्रग्स जो यूज़ होते हैं दैट इज एम्फिटामाइन, डेक्साएम्फिटामाइन. सारे एम्फिटामाइन ड्रग्स जो होते हैं वो किस में यूज़ होते हैं, दैट इज CNS स्टिमुलेंट में एम्फिटामाइंस का यूज़ किया जाता है. फिर देखते हैं हम लोग नेजल डिकंजेस्टेंट. इसमें हम यूज़ करेंगे जिसमें लाइक जोलिन जो ड्रग्स होते हैं ना, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, वो सारे ड्रग्स इसमें होते हैं. फिनाइलिफिनेफ्रिन, सुडोइफिनेफ्रिन. नेक्स्ट इज दी ब्रोंकोडाइलेटर. इसमें जो डायलेशन का काम करने वाले ड्रग्स होते हैं, जैसे हमें पता है टर्बिटालिन होता है, सैलबिटामोल हो गया, आइसोप्रेनालिन हो गया, सेल्मिटेरॉल हो गया, फॉर्मोटेरॉल हो गया, बैम्ब्यूटेरॉल हो गया. फिर प्रेशर एजेंट जो होता है दैट इज एड्रेनालिन होता है, एफिड्रिन हो गया, जिससे डोपामिन होता है, फिनाइलेफ्रिन होता है, मिथोक्सामाइन होता है, मीफेंटरमाइन होता है. कार्डियक स्टिमुलेंट में हम लोग एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन एंड डोब्यूटामिन. इस पे क्वेश्चन आ चुका है MCQs में बहुत बार जीपैट में. एनोरेक्टिक्स में हम लोग एम्फिटामाइन यूज़ करते हैं, और सिब्यूट्रामाइन, फेनफ्लुरामाइन. सिब्यूट्रामाइन जो होता है वो क्या होता है, ये सीरोटोनिक अपटेक का इनहिबिटर होता है शायद. यूटेराइन रिलैक्सेंट में हम लोग जो ड्रग्स यूज़ करते हैं दैट इज सैलब्यूटामॉल, दैन दी टर्ब्यूटालिन, आइसोक्सुप्राइन एंड रिटोड्राइन. नेक्स्ट इज दी अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट. इट विल इंक्लूड्स इट इज़ कैटेगराइज इनटू द जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं वो होते हैं दो टाइप्स में. एक तो नॉन इक्विलिब्रियम टाइप, और इक्विलिब्रियम टाइप जो होता है उसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट. नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में होता है बीटा हेलो अल्काइलामाइन, जिसमें ड्रग है फिनॉक्सीबेंजामाइन. एक ही ड्रग होता है इसमें. और फिर हमने देख लिया कॉम्पिटिटिव टाइप में तीन इसमें ये डिवाइडेड है. एक तो पहले हम देखेंगे सिलेक्टिव वाले. जो अल्फ़ा सिलेक्टिव है वो उसमें याद रखना जोसिन होता है, जेड यूज़ किया जाता है. और अल्फ़ा 2 में जो है वाई के लिए होता है, जिसमें जेड होगा दैट वाई होता है. अल्फ़ा सिलेक्टिव में क्या होता है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्सासिन, अल्फ्यूजोसिन, टेम्सुलोसिन, देन सिल्यूडोसाइन. अल्फ़ा 2 सिलेक्टिव दैट इज़ योहिम्बिन. नॉन सिलेक्टिव का देख लेते हैं. इसमें पहला जो आता है इर्गोट अल्कोहलॉइड्स होते हैं, दैट इज़ इर्गोटामाइन, इर्गोटॉक्सिन. नेक्स्ट इज द इमिडाजोलिन, फेंटोलामाइन होता है. दैन मिसलेनियस में हम देखेंगे क्लोरप्रोमाजिन हो गया. हाइड्रोजन इर्गोट अल्कोहलाइड्स में हम देखेंगे डाई हाइड्रो इर्गोटामाइन, डाई हाइड्रो इर्गोटॉक्साइन, जिसे हम कोड इर्गोक्राइन भी कहा जाता है. सो दिस इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन. इसमें एक और एक है बीटा ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन.